Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 15 sampling distribution is under discussion. Today lecture number 20 and the topic is sampling distribution of biased or unbiased sample variances. In this lecture students, I will discuss an exercise question by sampling without replacement using sample size 2. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic sampling distribution of biased or unbiased sample variances with an important exercise question. The contents of this lecture is based on exercise question by sampling without replacement using sample size 2 for the sampling distribution of biased or unbiased sample variances. Capital S square for biased variance and small s square is for unbiased sample variance. Now students, I am going to start an exercise question for sampling distribution of S square or small s square. In the statement of this exercise question, a population consists of 4 values 2, 8, 12 and 18. Take all possible sample of size 2 without replacement. In the first part, find the means, biased and unbiased variances of each sample. In the second part, we will make the sampling distribution of the biased sample variance capital S square and unbiased sample variance small s square. Also find their means. In the third part, find the population variance sigma square of the given population values. And the fourth part, verify the results using these verifications. Expected value of s square equal to capital N over n minus 1 into small n minus 1 over n into sigma square. This is the first verifications for the biased sample variance. And the second verification is for the unbiased sample variance expected value of s square, which is also denoted by mu s square equal to n over n minus 1 population size को population size minus 1 से divide करेंगे into sigma square. And these are the two verifications using these four steps to verify the results using these results. The population values 2, 8, 12 and 18 and population size is 4 and sample size is 2 and sampling is done without replacement. In the first step, we draw the samples of size 2 by using without replacement process, and the formula is NCN for the total samples 4C2, which is 6. So here students, we draw the 6 samples of using these population values. And the process is that first of all write the serial numbers 1 to 6 and the second column is for samples. तो सैंपल स्टूडेंट्स आप लोग ड्रॉ करेंगे इन दिस वे. फर्स्ट आपने 2 को क्लिक करना है और 2 के साथ अटैच करेंगे 8, 12 एंड 18. तो आपने फर्स्ट 2 राइट करना है और 2 के साथ 8, 12 एंड 18 3 सैंपल्स ड्रॉ हो जाएंगे यूजिंग 2. और देन स्टूडेंट्स आपने 2 को लीव कर देना है और नेक्स्ट आपने 8 को क्लिक करना है. 8 के साथ 2 सैंपल्स ड्रॉ होंगे 8, 12 एंड 8, 18. और देन स्टूडेंट्स आपने 8 को जो है वो लीव कर देना है और 12 को क्लिक करना है. 12 के साथ नेक्स्ट आपने 18 एक ही सैंपल को ड्रॉ करना है 12, 18. तो विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोसेस में आपने रेपिटेशंस नहीं करनी और इस तरह से आप लोगों ने 6 सैंपल्स ड्रॉ करने हैं बाय सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. इन द नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, इनके फाइंड करेंगे मीन्स ऑफ ईच सैंपल और एक्स बार का हेडिंग देंगे. और आपने सबसे पहले दोनों सैंपल्स को ऐड करके उनकी वैल्यूज को ऐड करें. 8 + 2 10 और आंसर इज 5. देन 2 + 12 आंसर इज 14 डिवाइडेड बाय 2 और मीन का आंसर 7 राइट करेंगे. सिमिलरली 18 + 2 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10. 12 + 8 is 20 divided by 2 answer is 10. 18 + 8 or 26 divided by 2 13 और 18 + 12 30 divided by 2 आंसर is 15. तो सैंपल मीन्स को ड्रॉ करने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो अपने सैंपल वेरिएंसेस उसको फाइंड करेंगे. और फर्स्ट हम लोग जो है वो बायस सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n इसको फाइंड करेंगे. फर्स्ट सैंपल वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है और नेक्स्ट सैंपल वैल्यू 8 है. हर सैंपल वैल्यू को हम लोग मीन से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे और देन इसको सैंपल साइज 2 पे डिवाइड कर देंगे. तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 2 है. 2 को माइनस करें 5 मीन से 2 - 5 का स्क्वायर और देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू आपकी 8 है. 8 - 5 का स्क्वायर मीन 5 है और इसको ऐड कर लें. 2 - 5 3 का स्क्वायर 9 एंड 8 - 5
3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 9। सिमिलरली आपने फॉर सेकंड सैंपल के लिए इसी तरह से आपने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। 2 माइनस 7 मीन आपका 7 है, 7 में से माइनस करें 2, फर्स्ट वैल्यू आपकी 2 है, 2 माइनस 7 5, 5 का स्क्वायर 25, और नेक्स्ट वैल्यू 12 है, 12 माइनस 7 विच इज ऑल्सो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 आपका 50 होगा, और 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 25। सिमिलरली फॉर द थर्ड सैंपल इसमें आपने फर्स्ट वैल्यूज अगेन 2 है, 2 माइनस, और मीन इस सैंपल का 10 है, 2 माइनस 10, 10 8, 8 का स्क्वायर 64, और नेक्स्ट वैल्यू आपकी 18 माइनस 10, 8, 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 64। सिमिलरली आपने रिमेनिंग सैंपल्स के लिए भी इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन से और स्क्वायर करके सम करना है, और सैंपल साइज पे डिवाइड कर देना है, और देन आपने इसके फाइंड कर लेने हैं सैंपल वेरिएंसेस विच आर द बायस्ड सैंपल वेरिएंसेस। इन द नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करेंगे अनबायस्ड सैंपल वेरिएंसेस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस स्क्वायर, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे n-1 पे। तो सिमिलर वे पे हम लोग फर्स्ट वैल्यू जो है इसको कंसिडर करेंगे सैंपल की 2, और 2 को मीन से सब्ट्रैक्ट करें 5, 2 माइनस 5, और देन अगेन 8 माइनस 5, दोनों का स्क्वायर लेके सम करेंगे, और ये आपके पास 2 माइनस 1 पे जब डिवाइड होगा तो आंसर इज 18। और नेक्स्ट आपके पास नंबर जो है वैल्यू जो है वो 2 है फॉर सेकंड सैंपल, और 2 माइनस 7, 7 अगेन आपका मीन है 2 माइनस 7, 5, 5 का स्क्वायर 25, और नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 12 है, 12 माइनस 7 अगेन 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 और प्लस 25, 2 माइनस 7 5, 5 का स्क्वायर 25, और 12 माइनस 7 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50, 50 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 आंसर इज 50। नेक्स्ट सैंपल आपके पास जो है वो 2 और 18 है, तो 2 माइनस 10 मीन इसका 10 है, और 18 माइनस 10 ये राइट करेंगे, इनका स्क्वायर्स आपने राइट करना है 18 माइनस 10 का स्क्वायर, और देन इसको 2 माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 128। और सिमिलरली आपने रिमेनिंग 3 सैंपल्स जो है इसी तरह से इसको इनके सैंपल्स को सैंपल वेरिएंसेस को फाइंड कर लेना है यूजिंग दीज सैंपल्स एंड देयर मीन्स। इन दिस वे स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो इनके सैंपल्स के मीन्स, वेरिएंसेस और अनबायस्ड वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो प्रिपेयर करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कैपिटल एस स्क्वायर एंड फॉर स्मॉल एस स्क्वायर। In the second step, we prepare the sampling distribution of the biased sample variances as square and find its mean. First of all, students, हम लोग write करेंगे s squares को as we have to find in step 1, and we have the values of s square 4, 9, 25 and 64. इसको first column में write करेंगे, और 4 appears one time, 9 appears 2 times, and 25 appears 2 times, and 64 appears one time, and there are a total 6 samples, so frequency का sum जो है वो student 6 होगा। in the next columns write the its relative frequency और probability। तो first आपने इसकी f of s square को write करना है, f of s square is the probability of each s square, और इसको कैसे write करेंगे, ये one time appear हो रहा है, total 6 है तो 1 by 6 आ जाएगा, then आपके पास 2 times appear हो रहा है, 2 divided by 6, और again 2 divided by 6 for 25, and again 1 divided by 6 for 64। इस कॉलम को सम कर लें तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। देन आपने स्टूडेंट्स आपने राइट करना है फॉर्मूला मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, इसको आपने ओपन करना है समेशन साइन के साथ, और राइट करना है एस स्क्वायर और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ एस स्क्वायर, और इसका कॉलम जनरेट करेंगे एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर, ये इज द लास्ट कॉलम, और एस स्क्वायर का कॉलम फर्स्ट कॉलम है, और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एस स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 6, आंसर इज 4 by 6, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 by 6, और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 50 by 6, और 64 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 64 by 6, और इसको सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 136 by 6, और ये आपने इसको राइट कर देना है अपने फॉर्मूला के अंदर, 136 by 6 पुट कर दे, और आंसर इज 22.67।
So this is the answer for mean of capital S square in step 2. The same step, we have to make the sampling distribution of the unbiased sample variance small s square. Or first we write the small s square as we have to find in step 1, and we have the four values of s square: 8, 18 and 50 and 128. 8 appears one time, 18 appears two times, 50 appears two times, and 128 appears one time, right in the frequency column, and summation f equal to 6. In the next column we write the its relative frequency f of s square. और ये आपके पास जो है फर्स्ट 8 जो है वो वन टाइम अपीयर हो रहा है टोटल 6 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/6। और नेक्स्ट 18 जो है वो टू टाइम्स अपीयर हो रहा है 2/6। और देन फिर आपके पास अगेन 50 अपीयर हो रहा है टू टाइम्स 2/6। और 128 वन टाइम अपीयर हो रहा है 1/6 राइट करेंगे। और सम ऑफ एफ ऑफ एस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देन स्टूडेंट्स हम लोग राइट करेंगे इसका फॉर्मूला मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। अगेन इसको ओपन करेंगे समेशन एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर और इसका कॉलम जनरेट करेंगे। सम के बाद जो भी राइट किया गया है इसका कॉलम जनरेट करेंगे एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर और देन इसका सम जो है इसको फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जो है वैल्यू एस स्क्वायर की फर्स्ट कॉलम के अंदर 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करें इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी 1/6 से और आंसर इज 8/6। नेक्स्ट आपके पास 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा थर्ड कॉलम के अंदर और 36 डिवाइडेड बाय 6 इसको राइट कर देंगे। 50 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 50 मल्टीप्लाई बाय 2/6 आंसर इज 100/6। और 128 1 से मल्टीप्लाई होगा 128/6 और टोटल आंसर इसका फाइंड कर लें। सम करें इस कॉलम का 272 पॉइंट डिवाइडेड बाय 6 इसको पुट कर दें अपने फॉर्मूला के अंदर 272/6 और इसको पॉइंट्स में आप लोग राइट कर सकते हैं 45.23। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर व्हिच इज अनबायस्ड एस स्क्वायर। Now in the third step we find the population variance of the given population values x और x values को कॉलम में राइट करेंगे 2, 8, 12 and 18 और इसका समेशन कैलकुलेट करेंगे समेशन x इक्वल टू 40। स्केयर फाइंड करेंगे x स्केयर 2 का स्केयर 4, 8 स्केयर 64, 12 का स्केयर 144 एंड 18 स्केयर 324 और इस कॉलम का सम फाइंड कर लें विच इज 536 536 which is the value of summation x square and summation x equal to 40। then students आप लोगों ने राइट करना है population variance का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर summation x square ओवर कैपिटल n माइनस summation x और n का होल स्क्वायर और वैल्यूज को पुट कर दें। summation x square आपके पास 536 है, population साइज जो है 4 वैल्यूज हैं और summation x की वैल्यू आपके पास 40 है, 40 डिवाइड बाय 4 इसका आपके पास आ जाएगा आंसर 10 और 10 का स्केयर 100 आ जाएगा और 536 डिवाइडेड बाय 4 जो है इसका आंसर आपके पास 134 होगा और इसको माइनस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर का 34। तो पॉपुलेशन के लिए वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो अपनी इन्फॉर्म रिजल्ट्स को जो है वेरिफिकेशंस में पुट करेंगे और इसको जो है वेरीफाई करेंगे यूजिंग दीज रिजल्ट्स। The fourth step verification formulas are used by sampling without replacement using obtained results. Population size is 4, sample size is 2 and mean of capital S square equal to 22.67 and mean of small s square equal to 45.33 and population variance equal to 34. First we write the verifications for unbiased biased sample variance mean of S square capital N over n minus 1 into small n minus 1 over n into sigma square। स्टूडेंट्स हम लोग तमाम रिजल्ट्स जो है इसमें पुट करेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो 22.67 which is obtained from the sampling distribution of the biased sample variance से हमने इसको ऑब्टेन किया था और कैपिटल N इक्वल टू 4 पुट कर दें डिनोमिनेटर में 4 minus 1 और इनटू सैंपल साइज 2 minus 1 over 2 और पॉपुलेशन वेरिएंस इज 34। राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लें 4/3 और 1/2 into 34 आंसर इज 22.67 which is exactly equal to the mean of S square। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड and second verification is for the unbiased sample variance mean of S square mu S square equal to capital N over n minus 1 into sigma square और रिजल्ट्स पुट कर दें। रिजल्ट्स आपका मीन ऑफ
smallest square is equal to 45.33 और राइट साइड पे स्टूडेंट्स कैपिटल एंड 4 माइनस 1 4/3 और इसको मल्टीप्लाई करें पॉपुलेशन वेरिएंस 34 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45.33 विच इज इक्वल टू द मीन ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर. In this way students दोनों वेरिफिकेशंस को हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है यूजिंग द वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज बाय सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. In this lecture, an important exercise question has been discussed for sampling distribution of the biased or unbiased sample variance using sample size 2 for sampling without replacement. Inshallah students, next lecture में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.